Five electrons. No. Valence shell. After You told me sharing, sir, after sharing, sir, Ah. valence shell there is 3 electrons. So after sharing 3 electrons also it will take from the hydrogen. So it will having 6 electrons. And 6 electron means 2 electron less than octet. Yes, yeah, less than octet. 2 electron less than octet. So it is having incomplete octet. That is why it is acting as a Lewis acid. So what actually BH3 do? BH3 become the dimer. Okay, BH3 get multiplied by itself and become the dimer. And that dimer we have to study today. That is, if you are taking BH3, so it is getting dimerized. So it is forming that is B2H6. Okay, and this is what is known as diborane. This is diborane. Preparation and properties already over. Right? We are going to study that is structure of B2H6. Can we make a note of it? Structure of B2H6. From here I am starting. I will start from here. Structure of B2H6. Okay, B2H6. So how can you draw the structure student? If you are talking about B, here is B, one hydrogen you can put here, another hydrogen is here, another hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen. Right? Now, if you are doing the boron is 5 electron, you are doing the 2 and 3. Hydrogen is 1 electron, so that is 1. Okay. So valence electron we are mentioning by dot. So that is here is we are 1 dot. This is going to be 2 dot. Here is going to be 3 dot. Okay. For this one. If you are talking about this one, this boron, so 1 dot here. This is the second 2 dot, and this is 3 dot. Hydrogen, all the places you can put the cross symbol. This is also hydrogen is cross. This is also going to be cross. Here you see this is the cross. This is cross. So here there is no problem. Here they are, they are completing the duplet. Here the 4 hydrogen are capable to complete the duplet. There is no hydrogen. There is no problem at all here. So if you are making B, here is hydrogen. This is hydrogen. Okay, directly they are sharing. For this one also here is hydrogen and this is hydrogen. They are known as what terminal hydrogen because they are the ending side. Na? So they are all 4 are that is known as terminal hydrogen. This is what terminal hydrogen. Terminal hydrogen you can see also that is normal hydrogen because they are formed by the normal single bond. Nothing there. But when you talk about this one, you see this one. So what is happening if you are mentioning this one dot and cross? So here this one, this boron is also getting shared. Which one is getting shared? This electron they are sharing. Okay. And when you are talking about this one, so dot and cross are there. So this boron is also trying to share with this one. Okay. So you see what is happening? 2 electron, 2 electron, 2 electron, 2 electron, 8 electron, octet completed. If you talk about this boron is also going to complete this one. Okay, and this boron is also going to take this one. Now see here, what is happening to this one? Here is the normal bond. There is no problem with the terminal. These are the normal bond here. Here is also normal bond. But now if you are talking about the boron, each boron is completed the octet. How it is completing? 2 electron here, 2 electron here, 4 to 6 to 8. Here is what is 2 to 4 to 6 to 8. But they are what is known as bridge hydrogen. Okay, bridge hydrogen. Bridge hydrogen. And this electron, if you are talking about this one, so 2 electron linking with how many atom? Hydrogen. Okay, this is the hydrogen, and here is the boron, and here is boron. So this bond. If you are talking about 2 electron, 2 electron, 3 center, 2 electron, 3 center bond, 2 electron, 3 center bond. That is what is known as banana bond. Banana bond. Okay. So this type you need to understand this one. What is happening here? This is the one hydrogen atom is what is happening overlapping this way.
here like this one. This one. So here you can mention that is hydrogen. Another hydrogen atom also getting joined together. So this is hydrogen. Now you can see the shape here. If you are able to see the shape, I'm making it. Yeah. So its shape is what? That the shape is looking like that banana shape. This is the shape is banana shape is looking. That is why this is known as what? Banana bond. Okay. So here if you can write 2 electron 3 center bond is known as, okay, in bracket I am writing, is known as banana bonding, is known as banana bonding, is known as banana bonding, as its shape appear like banana, as its shape appear like what is student? Appear like banana, as its shape is appear like banana. Will you be able to understand, student, this one? समझ पाएंगे इसको? Yes. ओके, थैंक यू। इसको थोड़ा सा अगर आप बना लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, अगर आप बनाते हैं तो। kindly draw it, student, kindly draw it. टर्मिनल बॉन्डिंग अगर बोला जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर बॉन्ड, दिस इज व्हाट टर्मिनल इज, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड मींस व्हाट? नॉर्मल बॉन्ड। ओके, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसमें क्या किया है, इसको अगर देखेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में क्या है, एक हाइड्रोजन का एक बोरान का, नीचे में भी एक हाइड्रोजन का, दूसरा ये वाले बोरान का। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर को जोड़ रहे हैं? बोरान, हाइड्रोजन और बोरान। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? बनाना बॉन्ड। इसका शेप भी आप देखेंगे तो ऐसा कैसा लग रहा है? बनाना की तरह लग रहा है, तो दैट इज व्हाट? बनाना बॉन्ड। बट इतना सा ही है बनाना बॉन्ड। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? बनाना बॉन्ड। इरेज कर दो स्टूडेंट, कैन आई इरेज नाउ? राना आफरीन, हो गया? यस सर, हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आता है, इसका लास्ट हेडिंग अगर आप देखेंगे एससीआरटी बुक से उठा करके, तो एप्लीकेशन है बोरान और एल्युमिनियम का एप्लीकेशन है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ बोरान, है ना, यूजेज ऑफ बोरान, अगर बोरान की बात करेंगे तो ये क्या है, इट हैज, है ना, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एंड आल्सो इज वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड भी होता है, एंड आल्सो वेरी हार्ड। तो इसका सो इट इज यूज्ड फॉर, इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर इसको बोल किया करना है तो ये नॉर्मली ये होगा नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आल्सो इज वेरी हार्ड, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुछ ऐसा होगा, बुलेट प्रूफ jackets. That is what is the first point. अगर second point लिखेंगे तो आइसोटोप ऑफ बोरान, एक आइसोटोप ऑफ बोरान होता है, आइसोटोप ऑफ बोरान। ओके, तो आइसोटोप ऑफ बोरान ये वाला होता है P5 and 10, दिस इज आइसोटोप वाला। तो आइसोटोप ऑफ बोरान
is capable to what student, it is capable to absorb neutron, है ना, absorb neutron. तो absorb the neutron from the radiation, तो उसको करते क्या है, absorb neutron. So it is used to make, इसको क्या किया जाता है, सीट बना सकते हैं या शेड बना सकते हैं. ओके, used to make seed in bracket also, that is what is seed also, you can see seed or seed in nuclear power plant. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको पता ही है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूट्रॉन जनरेट होगा, और न्यूट्रॉन अगर उसको बंद करना है या किसी तरीके से उसके रेडिएशन से बचना है, ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं कि ऐसा भी चाहिए कि जो उसके न्यूट्रॉन्स को, जो न्यूट्रॉन्स का एमिशन है उसको कहीं से स्टॉप किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए. तो कहां से करते हैं, आपका बोरॉन का रेडियो एक्टिव लेते हैं, इट इज कैपेबल टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन so that it is used in there also. ठीक. अच्छा, कल हम ऐसे भी बता रहे थे आप लोगों को कि जो ये आर्थोपोरिक एसिड है, तो आर्थोपोरिक एसिड क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है. अगर उसको थोड़ा बहुत अगर अमाउंट में पानी में मिला करके अगर स्किन पे लगाते हैं तो आपके जो ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको वॉश करने में भी यूज होता है. और सिमिलरली अगर हम बोरेक्स लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग द बोरेक्स थोड़ा क्या होता है कि इसका कंसंट्रेशन थोड़ा अगर ज्यादा ले लीजिए तो ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा. डिसइंफेक्टेंट का होता है मतलब उसको आप डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक both are the same things, but antiseptics are applied on the skin, and that is if you are talking about disinfectant, it is used for the cleaning the floor or some other things. उसको आप disinfectant को body पे नहीं लगा सकते. That is what the difference between disinfectant and antiseptic. तो this is what बोरॉन का एक और एप्लीकेशन है, वो क्या है कि मेडिसिनल सोप बनाने में इसके कुछ पार्ट को यूज किया जाता है. बोरॉन इज आल्सो यूज्ड इन द preparation of medicinal soap. So this is all about the boron. Next study is there, student, and that is what application of the uses of aluminum. So aluminum का भी uses little bit more है. अब उसको आप देखिए कैसे हो सकता है aluminum का application ना air. So first one, it has twice conducting power. It has twice conducting power than copper. अगर कंडक्टिंग पावर की बात करें तो कॉपर का ये डबल होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होने की वजह से ये क्या है कि इसकी कंडक्टिंग पावर ट्वाइस है. एंड आल्सो इसके पास है आल्सो हैव टेंजाइल स्ट्रेंथ. इसके पास टेंजाइल स्ट्रेंथ भी है. और रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो इसका बहुत कम होता है. So it is used in making क्या बनाया जाता है, wire. It is used in making wire. दूसरा इसका क्या है, since it is light metal, थोड़ा सा लाइट मेटल है, so it is क्या बोला जा रहा है, so it is used in where student, used in making aircraft body of aircraft, या बॉडी बोलिए या चैम्बर बोलिए, जो भी बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट. ठीक है, लाइट और हार्ड होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट में जितने भी होते हैं उसका आप देखते होंगे बहुत हल्के होते हैं एयरक्राफ्ट. मतलब क्या होते हैं, एल्युमिनियम उसमें लगा रहता है, आयरन का नहीं बनता है. ये हो गया थर्ड वन. एल्युमिनियम
is aluminum and its, ठीक है। अगर कई सारे मेटल को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, उसको क्या बोलते हैं, alloy. Aluminum and its alloy, ALLOY, is used in making utensils. In making, utensils. या थिंग्स। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि यूज होते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं हम लोग, क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में यूज किया जाता है। गैलियम का एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट, गैलियम क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल थर्मामीटर होता है, इंडस्ट्रियल थर्मामीटर। जैसे अगर आप बॉयलर का ड्रम है, जो लोग जिनके पेरेंट्स एनटीपीसी में काम करते हैं सबको पता होगा कि जो ड्रम का वाटर होता है उसका टेम्परेचर कुछ 2000 इतना उसको ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है, कि स्टीम का अगर पाइप जो हमारे 4-5 स्टीम होते हैं, सैचुरेटेड स्टीम, मेन स्टीम, ओके, और बॉयलर स्टीम, ऐसे करके बहुत सारे वाटर आते हैं प्लांट में। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पाइपलाइन होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो स्टीम होता है ना, दैट इज वेरी हाई होता है, वेरी हाई, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए उसका टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल, अगर आप मरकरी वाला लेंगे तो मरकरी तो वेपराइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही क्या है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है। तो अब उसके लिए करते क्या है, गैलियम यूज किया जाता है ना, गैलियम इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर। तो गैलियम को कहाँ पे यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। और इंडियम, और जो आपके पास एक SnPb है ना, इंडियम और थैलियम है। इंडियम थैलियम का उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, ये नॉर्मल एलिमेंट है कंपेयर टू बोरॉन और एल्युमिनियम। other elements are not that much useful, we are not making any utensils and any other things like that. So these are the application student, this is all about the group 13। तो ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करेंगे तो हम लोगों ने पहले जनरल प्रॉपर्टीज देखा था, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या देखा था, कंस्ट्रेंट देख लिया था कि 5 एलिमेंट है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब आप ट्रेंड में देख लीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा कि 2 जगह आपका फ्लक्चुएट कर रहा था, कि बोरान से गैलियम में जाने पे बढ़ जा रहा था, और लास्ट में आप देख रहे थे कि इंडियम से थैलियम में भी जाने पर बढ़ जा रहा था। रेडियाई का भी यही हाल था, रेडियाई भी ऊपर नीचे हो रही थी, कि बोरान से एल्युमिनियम बढ़ी फिर गैलियम में जाकर के घट गई, उसका भी रीजन हमने बताया था। ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट, दैट इज प्लस, आप देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ग्रुप ऑक्सीडेशन है, लेकिन when you are moving down the group, stability of +3 oxidation state is decreasing, the reason I told you, there is the inert pair effect। दूसरा चीज, अगर स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो उसकी बढ़ जाती है, उसका भी रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ही है, ठीक। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन हम लोगों ने देखा कि दे आर गोइंग टू फॉर्म द ऑक्साइड, और ये केवल एक ही टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 टाइप, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही ऐसी है, 3 है, तो ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड से E2O3 बनाएगा। लेकिन उसके ऑक्साइड में क्या है कि उसके प्रॉपर्टीज अलग अलग है। प्रॉपर्टीज में ऐसे हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऑक्साइड उसके कैसे थे, एसिडिक ऑक्साइड थे। कौन सा, बोरान का ऑक्साइड जो था दैट इज हाईली एसिडिक है, लेकिन हम जैसे बीच में आते हैं एल्युमिनियम और गैलियम का, दैट इज एम्फोटेरिक, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, या एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई एम्फोटेरिक। लेकिन हम इंडियम थैलियम की बात करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी बेसिक। बेसिक ऑक्साइड इसलिए होते हैं क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर नीचे बढ़ जाता है, और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। हैलाइड्स हम लोगों ने देखा था कि आपका EX3 टाइप्स के हैलाइड बनाते हैं, बस यही था। आगे जो कंपाउंड हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने देखा बोरेक्स Na2B4O7.10H2, उसके प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसके बाद आर्थोपोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, आपको ये बता दिया। डाइबोरेन भी इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको अमोनिया से ट्रीट करते हैं डाइबोरेन को। तो ये इनऑर्गेनिक
बेंजीन बनाता है, दैट इज उसको बोला जाता है बोराजीन। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे। आपकी बॉन्डिंग की बात किया जाए तो आर्थोबोरिक एसिड का भी बता दिया था मैंने कैसा होता है बॉन्डिंग। एंड नेक्स्ट वन, आर्थोबोरिक एसिड नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे डाइपोरेन कैसा बनाता है, डाइमर बनाता है। डाइमर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बनाना बॉन्डिंग होता है। 2 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन टर्मिनल जुड़ेंगे जो दोनों साइड में 2-2 होंगे। ये 2 हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन बनाएंगे और वो क्या करेंगे कि ब्रिज का काम करेंगे, बीच में 2 साइड के बोरान को ऐड आउट करेंगे। ठीक, अब बीच में जब आप सेंटर करके बनाएंगे तो वो बनाना टाइप का शेप बनेगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज बनाना बॉन्डिंग। स्पेसिफिसिटी क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को 3 एटम को बॉन्ड करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बनाना बॉन्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द बनाना बॉन्डिंग। तो ये ग्रुप 13 होता है कंप्लीट। नाउ लेट अस ट्राई टू स्टार्ट द ग्रुप नंबर 14। तो आप इसको इरेज करते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा। लेट अस ट्राई टू स्टार्ट ग्रुप 14। So student, when you are talking about study of group 14 student, study of group 14 element, अगर group 14 elements की हम बात करते हैं तो this group 14 element is what is known as carbon family, that is also known as carbon family. FAMILY, कार्बन फैमिली। क्यों इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, देखते हैं कोई है कि नहीं। Why they are called group 14 elements are carbon family? तौकीफ अकरम, क्यों कार्बन फैमिली बोलते हैं बेटा तौकीफ? Why they are called carbon family? The first member is carbon, so फर्स्ट मेंबर इज कार्बन, वेरी गुड। फर्स्ट मेंबर कार्बन है तो कार्बन फैमिली बोलते हैं। एक और भी इसका कुछ पॉइंट होता है कार्बन फैमिली बोलने का मतलब, जैसे नहीं बोलते हैं कि ऐसे हमारे में तो चलता है उधर में कि गुप्ता फैमिली है या साहू फैमिली है, ऐसा बोलता है। क्या इसका मतलब क्या होता है कि जो साहू समाज होगा उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर ऑलमोस्ट आप पाएंगे कि मतलब ज्यादातर सेम ही होते हैं। जैसे हमारा जो है ना कि हम तो एक्सेप्शनली टीचर बन गए हैं, अदरवाइज सब बिजनेसमैन हैं। लोग गुप्ता में देखेंगे सब बिजनेसमैन, मतलब क्या है कि अच्छा कैरेक्टर शो करते हैं कि उसी टाइप में रहेंगे, मतलब समझ पा रहे हैं। तो मतलब कार्बन फैमिली का मतलब ये हो गया, सिंपल ये है कि जो कार्बन के नीचे के एलिमेंट होंगे तो वो कैसे होंगे, कार्बन की तरह होंगे और क्या, है ना। समझ पा रहे हैं बात को कि मतलब जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन है और उसके नीचे के एलिमेंट है सिमिलर है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कार्बन फैमिली। So properties of group 14 element are very much similar with the carbon, that is why they are known as carbon family. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा या टाइप ऑफ कंपाउंड क्या होगा, सिमिलर होगा, that is why they are known as carbon family. तो ये तो वेरी सिंपल सा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हैं कार्बन फैमिली? Since the compound of क्या लिख सकते हैं, compounds of या एलिमेंट्स ऑफ, कंपाउंड तो सही है। Since the elements of group 14 elements of group 14 elements, since the elements of group 14 elements are similar in properties with carbon, similar in properties with carbon. ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह से सो दे आर नोन एज कार्बन फैमिली। सो दे आर नोन एज, इसको क्या बोला जाएगा, सो दे आर नोन एज कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली क्यों बोला जाता है बेटा, अगर क्योंकि उसके कार्बन की तरह प्रॉपर्टीज होते हैं।
अब इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कितने एलिमेंट से मिल करके ग्रुप 14 बना है उसको हम लोग देख लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? राना अफरीन बताएंगे क्या कितने एलिमेंट से मिल करके बना है ग्रुप 14 ग्रुप? सर कार्बन, हम्म सिलिकॉन, हम्म फिर सर कार्बन सर पूरा सर पूरा याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जर्मनी पूरा तो खैर मेरे को भी नहीं याद है, फिर भी इसको ना निमोनिक से याद किया करें, क्योंकि इसको इरेज करूं क्या मैं? Yes, sir. इसको याद करने का ये है कि एकदम से ये सब चीजें याद होती ही नहीं, इसको निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे, कुछ स्टोरी बना करके तो ये याद हो जाता है। अब जैसे ग्रुप 13 का तो ऐसे ही बैगन आलू गाजर इन खाया था, ऐसे बोल दिया था, तो क्या है बैगन आलू गाजर इन थैला, कितना इजी है, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब आप इसको ऑर्डर ऐसा कर देंगे कि गाजर आलू बैगन इन थैला, तब तो गलत हो जाएगा। पहले आप अब ऐसा सोच के जाइए कि पहले जाएंगे मार्केट में तो बैगन ही खरीदेंगे, इसके बाद आलू खरीदेंगे, फिर गाजर खरीदेंगे, तो बैगन आलू गाजर इन थैला ये बड़ी इजी से याद हो जाता है। अच्छा इसको ये ग्रुप 13 का है। अगर हम लोग देखते हैं ग्रुप 14 का तो देखिए ये कैसे याद करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ग्रुप 14 लेंगे तो इसका कंपोजिशन अगर देखेंगे तो क्या है, कहे शिव जी। अब हम लोग ऐसे ही हिंदू रिलीजन में ऐसे बोलते हैं, कहे शिव जी सुन पार्वती, ऐसे फील। तो शिव जी जो है दैट इज गॉडेड शिवा इज सेइंग टू हिज वाइफ, बट कहे शिव जी सुन पार्वती, ठीक है, दैट इज व्हाई। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड इन सब का नाम अलग अलग है, लेकिन ध्यान देंगे आप, दिस इज व्हाट इज नोन एज कार्बन, दिस इज नोन एज सिलिकॉन, ओके, दिस इज नोन एज जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम, ओके, हियर इज द टिन, है ना, Sn को टिन बोलते हैं और Pb को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। तो आप इन सब का ये सब ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं सिंबल, तो उसकी वजह से इसका नाम कुछ अलग है। एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका आपको पहले बताया गया है कि फर्स्ट नंबर का तो मेंबर का नाम आपको पहले पता होता है, इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेबल के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। तो इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब ये थर्ड पीरियड में है, लेकिन थर्ड पीरियड में क्या होता है, डी ब्लॉक में चालू हो जाता है, ठीक ना, तो डी ब्लॉक में चालू हो जाता है। वैसे अगर डी ब्लॉक चालू नहीं है तो मान लीजिए पोटेशियम कैल्शियम तक तो 8 ही जोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद क्या है कि हम दूसरे में जाते हैं तो डी ब्लॉक आ जाता है, तो इसमें 18 जोड़ देते हैं, तो 18 अगर जोड़ देते हैं तो ये तो 32 आ जाएगा, है ना। अब इसमें अगेन 82 कितना जोड़ेंगे आप, 18 जोड़ेंगे तो ये 54 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, दिस इज 50 और ये कितना आ जाएगा 80, इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 82। अच्छा ये हो गया 82, तो इसके ये हो गया एटॉमिक नंबर, आप याद कर लेंगे इसका। एटॉमिक नंबर अगर आप याद करना चाहेंगे किसी एलिमेंट का, इट इज टू डिफिकल्ट, सो सबका तो याद नहीं हो सकता है हायर एलिमेंट का, तो बेटर you know put the logic and so that you will be able to memorize। तो पहला इसमें है जनरल पॉइंट लिखते हैं, जनरल कैरेक्टर ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप की बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर ऑफ ग्रुप विच एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लोग बोलेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एक्सेप्शन, तो इट इज दे आर हैविंग दैट इज NS2, व्हाट इज देयर स्टूडेंट, NS2 NP2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट इज देयर स्टूडेंट, NS2 NP2। इसको हम लोग करके देख लेते हैं, एक दो का एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हम लोग कार्बन का देखते हैं तो कितना आ जाएगा, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो
क्या है 1s2, फिर देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी 2s2, फिर देखिए क्या हो जाएगा 2s2, इसके बाद 2p2, 2 2 4 2 6, एकदम सही है 2s2 2p2, इसका देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1s2, it is that is 2s2, here is 2p6, this is going to be what 3s2 and 3p2. Now you can check 2 2 4 6 10 to 12 to 14, that is very good. S2 p2 is there. Now if you are talking about 1s2, here is what 2s2, this is going to be 2p6, now 3s2 3p6 3d10, then it is going to be 4s2 and here is 4p2, again going to what s2 p2, इधर में इसको लेंगे तो आ जाएगा क्या है 5s2 और 5p2, इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 6s2 और क्या आ जाएगा 6p2. So if what you are finding that is they all are having the general electronic configuration same. You can see the general electronic configuration are same, that is why they are placed in the same group. या ऐसे बोलेंगे कि सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की तरह मैच हो रहा है, इसलिए they are all knowing as the carbon family. तौकीफ Yes, yes sir. कुछ हवा लगता है बेटा? Yes sir. बहुत अच्छी बात है, रेगुलर अटेंड करते हो कंपेयर टू और स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप एक भी दिन मिस नहीं किए हो. साधना पाल, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं. यस सर. हाँ, बहुत अच्छी बात है, इतना कष्ट आप लोग कर रहे हैं, आप लोग का कष्ट का फल मीठा होता है सुना है. अलीन, आप भी डेली क्लास अटेंड कर रही हैं. अमन कुमार, एंजेलिन, साधना पाल. एंजेलिन, हाउ आर यू? तौकीफ, आदिति पाठक, Yes, हाउ आर यू? sir. Fine. जेनी, राना अफरीन, साक्षी, विदिशा, विवेक पांडे, यस, निखिल कुमार, पीयूष कुमार, ओके, सुभी मिश्रा, सुस्मिता, तानिया. पीयूष कुमार, कैसे नींद खुल गई बेटा, आज आ गए? चलो अच्छी बात है, कभी कभी तो क्लास अटेंड कर रहे हैं. चलिए इसको हम इरेज करते हैं. स्टूडेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा. हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक साइज. ठीक है, एटॉमिक साइज में इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ऑल इज द सिमिलर. अगर बात करेंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या क्या बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस, कुछ भी आप नाम दीजिए, बोथ आर द सेम ट्रेंड दे आर हैविंग. So okay, so radii of group 13 element, radii of group 13 element, नहीं group 14 elements, group 14 elements increases. कब increase करेगा? increases down the group. क्यों increase करता है down the group? रीजन अगर लिखना चाहे already you know very well the reason as number of cell increases with each element. Number of cell increases with each element. तो अभी आपने खुद ही कॉन्फ़िगरेशन में करके देखा था कि हर एलिमेंट के साथ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा था, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाएगा, सो रेडियाई विल इंक्रीज. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, so here is what is happening student, size increases. If you want to write the value of this, after taking class, after finishing class, okay. नंबर था, मुझे लगा नंबर सर पक्का ना. So student यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देता हूँ रेडियाई. यहाँ पे इसका है 77 पिकोमीटर, काफी छोटी रेडियाई है कार्बन की फर्स्ट मेंबर से. यहाँ पे 118 पिकोमीटर, थोड़ा सा बढ़ गया है.
अगर इसका देखें 122, that is again increases 122 picometer. Next one is 140 picometers. This is also increases student. And the last one is 146 picometer. तो आपको देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, अट्रैक्शन घटेगा, तो रेडियाई आपकी बढ़ रही है। तो रेडियाई में तो कोई चेंजेस नहीं है। इवन व्हेन यू आर गोइंग आयनाइजेशन एनर्जी देयर इज नो चेंज। लेकिन ग्रुप 13 में चेंजेस हैं, तो ग्रुप 13 का ही आपको याद करना है, 14 का खास मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग वी विल पुट हियर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इफ यू आर राइटिंग आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्या लिखेंगे, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। रीजन भी आप लिख सकते हैं डिक्रीजेस एज, व्हाट कैन बी द रीजन एज साइज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेटिंग डिक्रीजेस। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखना है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases and hence less amount of energy required to remove electron, less amount of energy required to remove electron, okay, less amount of energy required to remove electron. So what is happening student, so IE decreases down the group, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको प्रोसेस पता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि एस ब्लॉक आपको शायद ऐसा पढ़ाया था। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट वी विल स्टार्ट इक्विलिब्रियम। Student, next chapter we will start equilibrium. आइए आप लिख लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb। तो कार्बन की जो IE है बेटा 1086 है, 1086 किलो जूल पर मोल, तो काफी ज्यादा है। अगर दूसरे की देखें 786, ऑलमोस्ट 200-300 कम हो गया है, 200, 786, 761, 708 और हमारे पास 715। तो देखिए यहां से यहां तो डिक्रीज हुआ, ठीक, दिस इज डिक्रीजेस। थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है इंक्रीज, जो हम लोग कल देखे थे इंडियम और थैलियम का देखे थे रीजन, कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा कम यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इसके बीच में, SN/Pb के बीच में, तो अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसका I बढ़ गया है। तो स्टडी व्हाट द एक्सप्रेशन आई गेव यू फॉर इंडियम टू थैलियम, द सेम रीजन इज देयर फॉर द SN/Pb। So this is all about the today's class student. Tomorrow we are going to study the oxidation state. You don't get something oxidation state, other than आप खुद पढ़िएगा। We'll teach whatever the important are there. Oxidation state we are going to study tomorrow. So see you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.